आपने क्वालिटी आइसक्रीम सुना होगा, बहुत जगह पे मिलता है, पुणे में भी। इट्स ए वन ऑफ द गुड ब्रांड, राइट? क्वालिटी आइसक्रीम्स। कितने लोगों ने सुना है क्वालिटी आइसक्रीम्स? रेज योर हैंड। क्वालिटी आइसक्रीम्स, इफ पॉसिबल, या गुड। एक मिनट। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप परचेज भी करते होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, आप बहुत सारे बोल रहा हूं मैं, एक दो नहीं, मेनी प्रोडक्ट्स यू मस्ट बी परचेसिंग। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। They had borrowed funds. They had borrowed funds from 10 banks, almost 10 banks. They had borrowed funds from almost 10 banks and they defaulted on the payment since 2018. Quality Ice Cream is one of the big manufacturers of ice cream. They had outlets almost at each city, and in 2010 they have borrowed some money, some 1,800 crores of loan they have borrowed from consortium of the bank. So there is a new word, consortium. Try to understand. What do you mean by consortium? Consortium means when two or more people comes together for conducting a particular task, any task, it is called as consortium. Now, a quality, right? That quality ice cream manufacturer require a huge loan of almost 1,800 crores. It also, amount is very huge. Loan amount is very huge. If a particular bank gives loan, right, even they have to bear a high amount of risk. Why? Because 1,800, right, 1,800 crores ka loan by one bank is a huge task. It's not that simple. Risk is very high, and therefore some banks comes together and they all together gives the loan. Means suppose that quality ice cream manufacturer has borrowed 1,800 crores. Some amount will be financed by SBI. Some amount may be financed by Bank of Baroda. Some amounts is financed by suppose Kotak. Some amount by HDFC, like that. So that is called as consortium. Consortium of banks. Generally, जब बड़े बड़े लोन्स होते हैं ना, उसमें एक अकेली बैंक नहीं देती है लोन, बिकॉज उतने फंड्स भी बैंक के पास होने चाहिए. फंड्स है भी तो इट इज वेरी रिस्की कि एक ही राइट बंदे को इतना सारा लोन देना और एक ही बैंक में, इट इज रिस्की. अगर वो डिफॉल्ट करता है तो द बैंक डूब जाएगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसलिए क्या होता है, द रिस्क इज शेयर्ड बाय मल्टीपल बैंक्स. सो दे कम टुगेदर एंड दे lend the money. The same happens, right, in respect of quality walls as like that ice cream manufacturer. Then up to 2018 they were making regular payments, but they started defaulting since 2018. And if you don't repay the loan in time, if you don't repay loan in time, if you don't pay the interest in the time, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. In such cases, bank classifies that loan account as NPA. लिख लेना NPA. NPA account लिख लेना. NPA, non performing assets. Non performing assets. So this consortium of bank has lent money to the quality walls ice cream manufacturer. बराबर. Now this quality walls ice cream manufacturer is not repaying the loan. वो नहीं दे रहा है. So this loan account in the books of bank becomes NPA, मतलब bad debts. Kind of bad debts. आपको अभी इस लेवल पे bad debt समझ में आ सकता है. If you have given money to someone and he does not give back you money, that is your loss.
आपने किसी को पैसा दिया, आपके दोस्त को पैसा दिया है, ही वॉज इन नीड ऑफ फंड्स, यू हैव गिवन हिम मनी एंड टुडे वो बोलता है मैं नहीं दूंगा आपको, ही इज नॉट रिटर्निंग द मनी, इट इज योर लॉस। आप देख के बैठे हो बट पैसा मिल नहीं रहा है। या आपने किसी को गुड्स क्रेडिट पे सेल किए, आपने क्रेडिट पे सेल किया और सामने वाला कस्टमर बोल रहा है नहीं उसके पास पैसे नहीं, वो नहीं दे सकता, इट इज योर लॉस। आप सेल करके बैठे हो बट पैसे नहीं मिल रहे, क्रेडिट पे सेल करके बैठे हो पैसे नहीं मिल रहे, इट इज अ बैड डेट्स। Similarly, the banks have lent money to the Quality Walls ice cream manufacturer, but they are not in position to, right, repay the loan, pay the interest, and therefore banks have said the loan account has become NPA, non-performing asset. Bank के लिए these loans given is asset. Quality Walls के लिए loans taken is a liability. Quality Walls के लिए वो liability है loan taken. Bank के लिए loan given is asset because bank will receive interest. जो लोन देगा उसके लिए वो asset होगा और जो लोन लेगा उसके लिए वो liability रहेगी. Try to understand. एक के लिए asset तो दूसरे के लिए liability रहेगी. Now that loan given is an asset for the banks because they will recover the interest, they will recover the loan amount. It is asset. But now that asset is not performing because that you are not recovering the amount, you are not recovering the interest, and therefore they have asked for insolvency. जब कोई रिपे नहीं करता है तो बैंक्रप्सी कोड है इंडिया में, बैंक्रप्सी एक्ट है, बैंक्रप्सी कोड. व्हाट मीन बाय बैंक्रप्सी? मराठीत त्याला दिवाळखोरी म्हणतात. मीन्स you are not in position to repay your liabilities, you don't have money to repay your liabilities. कंगाल, हिंदी में कंगाल चाहिए तो बोलो, कुछ नहीं आपके पास so that you can repay your liabilities. So these banks, right, ask CBI, obviously they will approach to the court and court asks CBI to investigate, and it is found that they are manipulating the accounts. Manipulate कर रहे accounts. Manipulating means वो accounts जो books of accounts है वो manipulate कर रहे हैं, उसमें changes कर रहे हैं खुद जानबूझ के. They are showing more sales. They are showing more sales. Actually उतने sales नहीं है. They are showing higher assets. Actually उतने assets नहीं है. They are showing liabilities. उतने liabilities भी नहीं है उनके. They are manipulating the accounts. And they are booking sham transactions. I will show you. Let me share my screen so that you will understand. Just a second. Sham transactions, SHAM. Sham transactions means, sham transactions are fake transactions, bogus transactions. Fake transactions are called as, right, sham transactions. ठीक है? So they are showing fake transactions, purchase, sale, and related transactions. फेक ट्रांजैक्शंस विद देयर कंपनीज, उनके अलग अलग कंपनीज होती हैं, उनके साथ वो फेक ट्रांजैक्शंस दिखा रहे हैं. दैट इज फाउंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बुक्स. Okay, now I think I can share my screen. Let me check. And this is very practical case study. Then just share हो जाएगी. It is almost 1,400 crores banks fraud. 1,400 bank fraud. The amount is very huge. Okay, yes, I can now share my screen. You must be right. ये आपने हर एक ने देखा होगा. Let me, ये वाला आपने सबने देखा होगा.
now, oh, okay, let me share my screen. ये वाला आपने हर एक ने देखा होगा, कहां पे ना कहां पे। ये वाला आपने बहुत जगह पे देखा होगा वही। सो अब ध्यान देना, अरे आई विल टेल यू द न्यूज। क्या है न्यूज? देखो, क्वालिटी लिमिटेड, वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर डेयरी प्रोडक्ट मेकर्स। अमूल के साथ इनकी अच्छी कंपटीशन थी, अमूल के साथ। डेयरी प्रोडक्ट मेकर्स हैज बीन चार्ज विद चीटिंग ए ग्रुप ऑफ द बैंक्स। ग्रुप ऑफ बैंक्स इज कॉल्ड एज कंसोर्टियम, ठीक है, ऑफ 1400 crores। मैं 1800 बोल रहा था, इट इज एक्चुअली 1400 crores in a case of a fraud filed by the CBI. The investigation agency CBI filed the case after searches at 8 locations including Delhi on Monday. Those named by the CBI includes Qualities Director Sanjay Dhingra etc. मतलब they have given the name. Directors are involved in the fraud. Companies directors, ठीक है? They have been charged with cheating, forgery, criminal conspiracy and corruption by the consortium of 10 banks led by Bank of India, constituted in 2012. 2012 में 10 banks come together under the leadership of Bank of India and they lend 1400 crores to Quality, right, Limited. Then again the CBI investigation, right, CBI started its investigation on a complaint by Bank of India which alleged that Quality Limited had taken credit from the bank since 2010 but started defaulting on the payments in the early 2018. The account was classified as NPA, non-performing asset, in August 2018. It said, अगर किसी का लोन अकाउंट NPA होता है, it is very bad, it is very bad. अगर आपने लोन लिया है and if your loan account becomes NPA, means, right, you are not in position to repay the money, you are defaulter and it impacts your credit. आपकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है ना, इट गेट इम्पैक्टेड, एडवर्सली इंपैक्ट हो जाती है, मतलब आपकी बोरोइंग कैपेसिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, राइट। देन मतलब उससे ऐसे दिखता है कि आप लोन लेते हो बट आप रिपे नहीं कर सकते, नेक्स्ट टाइम नो वन विल लेंड यू मनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉरेंसिक ऑडिट। व्हाट इज द फॉरेंसिक ऑडिट? दिस इज रियली गुड। फॉरेंसिक ऑडिट you will learn in the CA inter and CA final. Forensic audit is that branch of audit which is, right, which is audit for the frauds. जब frauds होते हैं ना, frauds, तब उसका जो audit करते हैं ना, उसको forensic audit बोलते हैं। forensic audit frauds investigate करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। The forensic audits of the accounts showed that out of total sales of 13,147 crores made by the company, only 7,107 crores were routed through consortium of the banks. मतलब बैंक के लिए, बैंक को रिपे करने होंगे पैसे, तो जो एक्चुअली 13,000 crores के सेल्स हुए ना, इन लोगों ने बैंक वालों को खाली बोला 7,000 crores के सेल हुए। क्या होगा कि आपने लोन लिया तो आपको बैंक को रिपे करना होगा, तो बैंक ने क्या बोला होगा कि जो भी सेल होगा पैसा हमारे अकाउंट में आना चाहिए, जो भी सेल होगा पैसा हमारे अकाउंट में आना चाहिए, क्योंकि आपने लोन डिफॉल्ट किया है। बट इन लोगों ने क्या किया, 13,000 crores का सेल किया, बट उसमें से खाली कितना दिखाया, 7,000 crores का ही सेल्स बैंक वालों को दिखाया। मतलब 6,000 crores का सेल उन्होंने बैंक वालों को दिखाया नहीं। 6,000 crore, values are in crores, not 6,000 rupees, they are crores। आगे, Quality overstated its financial statement. Financial statement means balance sheet. Financial statement means profit and loss account and balance sheet, right? क्वालिटी ओवरस्टेटेड, उन्होंने जानबूझ के उनके एसेट ज्यादा दिखाए, उनके लायबिलिटी ज्यादा दिखाए, उनके प्रॉफिट ज्यादा दिखाए। ओवरस्टेट किया मतलब जितना है उससे ज्यादा दिखाया, ठीक है, बाय bloating its business operations and indulge in manipulations of the accounts by making reverse entries.
क्या करने का, पहले सेल दिखाने का और फिर रिवर्स कर देने का। इस मंथ में सेल दिखाने का, नेक्स्ट मंथ में रिवर्स करने का। इस मंथ में सेल दिखाने का, रिवर्स मतलब क्या देखेगा, इस मंथ में सेल हो रहा है, फिर वो नेक्स्ट मंथ में रिवर्स भी हो रहा है, फिर सेल दिखाने का, फिर नेक्स्ट मंथ में रिवर्स करने का। मतलब रिवर्स होने के बाद उसका वैल्यू नहीं रहेगा ना। मतलब आपने दिखाया, राइट, आप आपके मम्मी पापा को बोल रहे कि मुझे 100 मार्क्स आ गए और नेक्स्ट मंथ में रिवर्स कर रहे हो, नहीं है आपके मार्क्स, फिर बोल रहे हो 100 मार्क्स आ गए, रिवर्स कर रहे हो। उस मंथ में मम्मी पापा तो खुश रहेंगे, क्यों, उनको लग रहा है 100 मार्क्स आए, बट एक्चुअली नहीं है, बिकॉज आप बाद में जाके उसको कैंसिल भी कर रहे हो। ठीक है, so similarly they started booking the entries and then reversing the entries, journal entries. Then the bank said in his complaint, the CBI said Quality is accused of cheating the banks by diversion of the bank's funds. उन्होंने क्या किया, जो बैंक के लिए 13,000 करोड़ पैसे थे जो सेल हो रहा था, बैंक को देना था, उसमें से 6,000 करोड़ वो दूसरी जगह पे यूज कर रहे थे। They were not giving it to the banks, they were using for some other purpose. So diversion of the funds, रूट डाइवर्ज होता है, देखो डाइवर्जन मतलब क्या, जिस रोड से जा रहे हो वहां पे नहीं दूसरी जगह पे लेके जाना, उसको बोलते हैं डाइवर्ट करना या डाइवर्जन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वालिटी, डाइवर्ज द फंड्स मींस जो बैंक को पैसे देने थे वो बैंक को नहीं दिए, किसी दूसरी जगह लेके गए आगे, मतलब उन्होंने फ्रॉड किया इन सिंपल वर्ड्स। आगे, राइट, आपके मम्मी पापा ने आपको पैसे दिए कुछ, सपोज लैपटॉप परचेस करने के लिए, और आप उससे पार्टी करते हो, इट इज अ डाइवर्जन ऑफ द फंड्स। यू आर रिसीव द फंड्स फॉर द परचेस ऑफ लैपटॉप एंड यू आर मेकिंग लाइक यूजिंग इट फॉर द पार्टी, इट इज अ डाइवर्जन, इट इज लाइक काइंड ऑफ चीटिंग, राइट ना। सो क्या लिखा है देखो, राइट, डाइवर्जन ऑफ द फंड्स, sham transaction means fake bogus transactions with the related parties, मतलब क्वालिटी लिमिटेड की बहुत सारी कंपनीज रहेंगे, उनके साथ वो ट्रांजैक्शन, फेक ट्रांजैक्शन दिखा रहे परचेस से, ठीक है। फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, फैब्रिकेटेड मतलब ऑब्वियसली अगर आप फेक ट्रांजैक्शन दिखाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी बनाना पड़ेगा ना फेक, खाली एंट्री से नहीं, उसमें डॉक्यूमेंट भी चाहिए ना, कि आपने अगर सेल किया तो दिखाओ डॉक्यूमेंट है क्या सेल का, बिल बनाया है क्या, बिल भी फेक बनेगा। आपने परचेज दिखाए फेक, तो परचेज के बिल भी फेक बनाने पड़ेंगे। सो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, दैट इज फॉल्स डॉक्यूमेंट, राइट, और रिसीट्स एंड फॉल्सिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सब राइट फ्रॉड किया उन लोगों ने। एंड क्रिएटिंग फॉल्स असेट्स एंड लायबिलिटीज, क्या लिखा है देखो, इट वाज alleged in the complaint that the said accused, that is Quality Limited, accused, right, has had cheated the Bank of India led consortium comprising Bank of India, Canara Bank, Bank of Baroda, Andhra Bank, Corporation Bank, IDBI, Central Bank of India, Dhanlakshmi Bank, Syndicate Bank, to the tune of rupees 14,000.62 crore. So this is a consortium, ये सब बैंक्स ने आके 14,000 करोड़ क्या किए, लोन दिया है क्वालिटी लिमिटेड को अंडर द लीडरशिप ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। मतलब मेजर लोन किसने दिया होगा, बैंक ऑफ इंडिया ने, मेजर लोन किसने दिया होगा, बैंक ऑफ इंडिया ने। आगे, सीबीआई spokesperson said to the PTI, Press Trust of India, besides Delhi, CBI also carried out searches at Saharanpur, जो उनके उत्तर प्रदेश में 2 लोकेशंस है, अजमेर इन राजस्थान एंड सम पलवाल इन हरियाणा। Quality Limited, which was once among the India's oldest and the most popular ice cream makers, has been facing insolvency proceedings since December 2018. जब दिसंबर में उन्होंने लोन रिपे करने में डिफॉल्ट कर दिया, राइट, दे हैव बीन आस्क्ड, राइट, उनको इंसॉल्वेंसी कोर्ट में लेके गए, राइट, अगर आप पे नहीं कर सकते तो इनको इंसॉल्वेंट बोल दो। क्यों ऐसे होता है, बैंक ऑफ इंडिया मस्ट बी फोर्सिंग क्वालिटी लिमिटेड टू रिपे द लोन, इंस्टॉलमेंट पे करो, वो पे नहीं करे, बोल रहे, क्या बोल रहे होंगे, वी डोंट हैव फंड्स, तो राइट, बैंक ऑफ इंडिया विल गो टू द इंसॉल्वेंसी कोर्ट, बोलेगा अगर ये पे नहीं कर रहे तो इनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, उनके असेट्स ले लो, वो असेट ऑक्शन करो और उससे जो पैसा आएगा हमें दे दो। एग्जांपल, आपने कुछ मूवीज देखे होंगे, मैंने कभी एक बोला भी था इनिशियल लेक्चर्स में, इंसॉल्वेंसी मतलब बैंक्रप्सी, मतलब अगर आप कोई लोन रिपे नहीं कर सकते या किसी का पैसा नहीं दे सकते तो आपको इंसॉल्वेंट
डिक्लेयर किया जाएगा, आपके असेट्स, आपकी प्रॉपर्टीज कोर्ट ले लेगी, कोर्ट उसका लिलाव करेगी, ऑक्शन करेगी, एंड उससे जो पैसा आएगा वो पैसा लाइक लोन रिपेमेंट के लिए यूज करेगी. तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया मस्ट बी फोर्सिंग इंसॉल्वेंसी कोर्ट टू डिक्लेयर क्वालिटी लिमिटेड एज ए इंसॉल्वेंट, टेक ओवर देयर एसेट्स, ऑक्शन देम, एंड उससे जो पैसा आएगा वो बैंक को दिया जाए. ठीक है. इंसॉल्वेंसी किसी को बोलना, राइट, उसके लिए कोर्ट के थ्रू करना होता है. देन it owes around 1900 crores to its creditors. 1900 crores to creditors. The company was dragged to bankruptcy court by the global equity giant KKR. KKR is the investor, right? They have invested in the Quality Limited. ठीक है. The company was dragged to the bankruptcy court by global equity giant KKR, right? In 2018, Quality had raised 520 crores from KKR India Finance Services through structured finance transactions. So KKR का भी उन्होंने डिफॉल्ट किया. 520 crores का KKR का डिफॉल्ट है. 1400 crores का, राइट, इस बैंक ऑफ बड़ौदा लेड कंसोर्टियम का डिफॉल्ट है. टोटल 1900 crores का डिफॉल्ट है. तो इन सब लोगों ने मिला के उनको, राइट, किसके लिए खींचा है? इंसॉल्वेंसी के लिए खींचा है. सो आई डोंट नो इट इज लिस्टेड और नॉट. लेट मी चेक. Okay, it is listed on NSE. So I can also show you. Try to understand. Right? What is the position? What is the position in stock exchange? देखो मजा देखो अब. फ्रॉड बाहर आए ना. एक मिनट. Quality Limited, right? Let me show you. Let me see. This is learning basically. एक बार चेक करते हैं हम लोग. ठीक है. एक्चुअली वो है क्या? स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं ना ये लोग. लेट मी चेक. मनी कंट्रोल पे रहेगा. मनी कंट्रोल इज रियली गुड वेबसाइट. कभी अगर आपको टाइम मिलता है दिन में तो डेफिनेटली एक दो बार उस वेबसाइट पे जाते जाओ. मनी कंट्रोल बोल के. जितना समझ में आता है उतना समझ में आता है. न्यूज पढ़ते रहो. गुड न्यूज. अच्छा, स्पेलिंग. ओके, लेट मी चेक. इट इज के डब्ल्यू ना. ओके, देखो इन्वेस्टिंग पे मजा देखो. इन्वेस्टिंग इज अ फ्री वेबसाइट. इट इज अ फ्री प्लेटफॉर्म. थोड़ा स्लो चलता है बट दैट्स फाइन. सो व्हाट हैपेंड जब ये, ऑब्वियसली उसके शेयर प्राइसेस गिरने चाहिए, राइट ना, मार्केट में. लॉजिकल है.
दिस इज वेरी लॉजिकल. अगर फ्रॉड बाहर आया है तो पीपल विल विड्रॉ द मनी. जो उन्होंने इन्वेस्ट करके रखे, जिन्होंने शेयर्स परचेस करके रखे ना, दे विल विड्रॉ द मनी, दे विल सेल द शेयर्स एंड द प्राइस शुड डिक्रीज. मैं चार्ट्स में आता हूं, एक सेकंड. देखो लोड होता है वेबसाइट पे, बहुत लोग यूज करते हैं फ्री में ना. अभी तो मार्केट चालू हुआ है 9:15. 9:15 को मार्केट स्टार्ट होता है, 9:15. ठीक है, एक्चुअली 9:30 को स्टार्ट होता है, बट 9:15 को ही यू कैन प्लेस द ऑर्डर्स. लेट मी टेक यू देयर. मैं इसको हाइड करता हूं. ठीक है, देखो नाउ वन डे, दिस इज अ चार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ चार्ट. ठीक है, यू कैन सी. ओके, दिस इज डेली चार्ट, ध्यान देना. दिस इज डेली, दिस इज अ डे, दिस इज टाइम एक्सिस. This is which axis? Time axis. This is which axis? Price axis. This is time axis. This is price axis. ठीक है, आगे. ओ, एक सेकंड, फिर से करना पड़ेगा क्या वो. Zoom. This is 5 minute chart, 50 minute chart, 1 hour chart, 1 day chart. मैं 1 day को जाता हूँ. ठीक है, ध्यान देना, जस्ट ऑब्जर्व करो चीजें, हर चीज समझ में आएगी. ये दिस इज आउट ऑफ, बट दिस इज राइट द एनालिसिस बेसिकली. देखो, यू कैन सी इसकी प्राइस कितनी, एक शेयर की प्राइस कितनी है भाई, 5 रुपीज. वन शेयर इज एट 5. वन शेयर इज 5. अगर आप पहले कभी देखते हो, राइट, देखो, लेट मी शो यू. पहले उसकी प्राइस कितनी थी एक शेयर की, थोड़ा पीछे जाना पड़ रहा है मुझे. यू कैन सी उसकी प्राइस ऑलमोस्ट, इफ यू चेक ऑन दिस एक्सिस, इस एक्सिस पे ध्यान देना. ठीक है, कभी उसकी प्राइस 167 रुपीज हुआ करती थी. 167 रुपीज. एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं. टुडे द, तब अगर आपने उसका शेयर परचेस किया होगा 167 में, 168 में, टुडे द प्राइस इज जस्ट 5 रुपीज. देखो ना, यू कैन सी द प्राइजेस almost, it was a good stock actually initially, good share, but ये मैं आपको कब के 2015 वगैरह की बात कर रहा हूं. धीरे धीरे जैसे जैसे ये 2018 के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ होगा. देखो 2018 में डिफॉल्ट किया ना, उसके बाद उसका मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ होगा. 2017 देखो, 2017 राइट, अगस्त, नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, नीचे गिरना स्टार्ट हुआ. उसके बाद नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है. देखो ना 2017, अगर आपको समझ में आता है थोड़ी चीज, देखो प्राइस गिर रही है, 2017 से नीचे गिरना स्टार्ट होगा. देखो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है. देखो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, गिर रहा है. देखो कितना गिरा, 5 रुपीज, अरे 2 रुपीज पे आके रुका है, 2 रुपीज. कितना गिरा है, यू कांट इवन इमेजिन. इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं, एक सेकंड. देखा कितना गिरा है.
बिकॉज ये सब न्यूज बाहर आ रही होगी ना कि डिफॉल्ट कर रहे हैं, पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग, लोगों का ट्रस्ट नहीं, इन्वेस्टर का ट्रस्ट नहीं है, दे हैव स्टार्टेड विड्रॉइंग मनी, रेवेन्यू कम होगा, तो लोग पैसा नहीं डालते, फिर शेयर किधर से किधर गिरा देखा आप लोगों ने? एक सेकंड, देखो, मतलब अगर उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई बाय भी नहीं कर रहा है, कोई सेल भी नहीं कर रहा है, देखो ना आप, एज इट इज है। लाइक सपोज मैंने इस कैंडल को हाथ लगाया, यहां पे आप देख सकते हो, कोई बच्चों को पता है क्या देखना होता है, O stands for open, A stands for high of that day or high of that period, L stands for low of that period, and C stands for close of that day. मैंने सपोज 20 सेकंड यहाँ पे नीचे डेट है, 20 सेकंड मे को अगर मैंने क्लिक किया, सपोज यहाँ पे मैंने जिस कैंडल को क्लिक किया, दैट इज 20 सेकंड में, ओपन एट 2.40, शेयर कितने में अवेलेबल था? मॉर्निंग में 2.40 जब ओपन हुआ, हाईएस्ट भी वही 2.40 था, ऊपर गए नहीं, लो था 2.25 और क्लोज हुआ 2.25, बस। यू कैन सी, अगर मैं आर्ली भी जाता हूं, थोड़ा आर्ली में थोड़ी मूवमेंट दिखेगी, आर्ली भी बहुत बुरा है यार। लेट मी अगेन गो, so you can see कितना बुरा चल रहा है स्टॉक, देखो कितना बुरा चल रहा है, कोई मूवमेंट ही नहीं स्टॉक में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? सो दैट इज द थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वन शुड अंडरस्टैंड। अगर भैया किसी दूसरे अच्छे स्टॉक में चलते, आईटीसी अभी प्रॉब्लम है, आईटीसी, आईटीसी पता है ना, टोबैको, आईटीसी पता होगा आप लोगों को, अभी बुरा चल रहा है, लास्ट कपल ऑफ डेज से आईटीसी इज परफॉर्मिंग बैड, देखो डिक्रीज हो रहा है लास्ट कपल ऑफ डेज से, इसके पहले अच्छा चल रहा था, इट वाज गोइंग गुड बेसिकली, बट डिक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट 180 रुपीज पे प्राइस आके गिरी है, देखो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 236 प्राइस थी, कब पता है क्या? जनवरी में, फिर जनवरी में अच्छा चला, अरे लॉकडाउन में बहुत अच्छा चला स्टॉक, बहुत अच्छा चला लॉकडाउन में, बहुत अच्छा चला, देखो प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी, लोग फूकना तो बंद नहीं करते ना, लॉकडाउन हो या कुछ, फूकने वाले फूकते ही ना, बट रिसेंटली यू कैन सी 207 उसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट, एंड नाउ इट इज ऑलमोस्ट एट 174, थोड़ा ये प्रॉब्लम में अभी आईटीसी, लॉन्ग टर्म के प्रॉब्लम में नहीं है बट शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम में, बिकॉज इन्वायरमेंटल नॉर्म्स वगैरह थोड़े स्ट्रिक्ट हो रहे, राइट, देयर आर सर्टेन रीजंस क्यों क्वालिटी सॉरी आईटीसी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट ये लंबे रेस का घोड़ा है, बिकॉज फूकना कभी बंद नहीं होगा इंडिया में, तो ऑब्वियसली लोग परचेस करेंगे, उनका सेल होगा, आईटीसी टोबैको, राइट, सिगरेट एंड टोबैको कभी बंद नहीं होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोग मरेंगे फिर भी लेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो इसका सेल होगा ही होगा। बेसिकली आईटीसी इज नॉट ओनली इन सिगरेट्स, खाली सिगरेट सेल नहीं करते, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आईटीसी, आप बहुत लोगों को लगता है सिगरेट और टोबैको में आईटीसी है, यस आई नो, मेजर रेवेन्यू, मेजर सेल्स उनका या मेजर प्रॉफिट टोबैको एंड सिगरेट से आता है, फिर भी राइट दे आर into FMCG like fast moving consumer goods, and they are also into agri goods, they are also into agri goods, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वहां पे दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट गुड, इसके वजह से ओवरऑल देखो एग्जांपल, आप एक पेपर में बहुत अच्छा कर रहे हो, एक पेपर में आप 100 में से 100 ला रहे हो, बट बाकी पेपर में यू आर स्कोरिंग 60-50, तो योर ओवरऑल परफॉर्मेंस विल डाउन ना, वैसे आईटीसी का है, सिगरेट एंड टोबैको में दे आर लाइक मोनोपोली, मोनोपोली मीन सिंगल, उनको कोई कंपटीशन ही नहीं है, सिगरेट एंड टोबैको में उनको कोई कंपटीशन ही नहीं है, बट दे आर इनटू एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसमें लाइक पतंजलि है, एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, देयर आर मेनी कंपनीज व्हिच आर कॉम्पिटिंग इन द एफएमसीजी, दे आर आल्सो इनटू एग्री बिजनेस, वो एग्री बिजनेसेस में भी है, तो उसमें हाई लेवल की कंपटीशन है, तो वहां पे उनका परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है, तो एक पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करे लाइक सिगरेट एंड टोबैकोज में, बट दूसरे में एवरेज है, इसलिए उनका ओवरऑल रिजल्ट
एवरेज दिखता है. आई कैन शो यू आईटीसी. आईटीसी, एक सेकंड, you will understand their product. They have a huge variety of the product. बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं वो. I will take you the brands. आशीर्वाद आटा पता है ना? आशीर्वाद आटा सुना होगा आप लोगों ने. इट इज ऑफ आईटीसी. सनफिस्ट इज ऑफ आईटीसी. बिंगो, ये नाम सबको पता है, आईटीसी. किचन्स ऑफ इंडिया, आई डोंट नो दैट मच अबाउट इट. आई थिंक दे हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इट. एपी, बी नेचुरल, मिंटो, मिंट, राइट, कैंडी मैन, गम ऑन, ये उनके बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं. पर्सनल केयर में, राइट, मुझे इसके इतने विवेल पता है, मुझे आई नो दिस. इसकी मैंने ऐड देखी है, इसकी मैंने ऐड देखी है. ठीक है. देन इसमें से हाँ, सेवलॉन मुझे पता है. एवरीबॉडी, ऑलमोस्ट सबको पता होगा सेवलॉन, राइट ना. देन एजुकेशन, क्लासमेट नोटबुक्स. क्लासमेट नोटबुक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय आईटीसी. कभी आप पढ़ो, वहां पे लिखा होता है, राइट. पेपर क्राफ्ट. सो दे आर नॉट ओनली इनटू सिगरेट्स. बहुत लोगों को लगता है आईटीसी इज ओनली इनटू सिगरेट. नो, नॉट एट ऑल. दे आर इनटू फूड, दे आर इनटू पर्सनल केयर, दे आर इनटू एजुकेशन. लाइक वो क्लासमेट नोटबुक्स तो सब हर एक के पास एक बार तो ली होगी क्लासमेट नोटबुक. पीछे देखो, वहां पे लिखा होगा आईटीसी, राइट. पेपर क्राफ्ट, मैचेस, अगरबत्ती भी बनाते हैं, मैचेस, राइट. मैच बॉक्स एंड अगरबत्ती. एम, राइट. मंगलदीप, होम लाइट्स एंड लाइफस्टाइल, डब्ल्यू विल्स. ये मुझे देखना होगा क्या है. दिस इज देयर ब्रांड्स अदर देन सिगारेट्स. अदर देन सिगारेट्स रहेगा. देखो ये क्या हुआ है. दे हैव इंट्रोड्यूस सम न्यू प्रोडक्ट्स एंड वो प्रोडक्ट्स इतने हिट नहीं हो रहे अभी मार्केट में. नए प्रोडक्ट है, इसलिए उनका थोड़ा ये हुआ है. देखो, दे आर इनटू व्हाट. देखो आईटीसी किस किस में बिजनेस कर रहा है. आईटीसी बिजनेसेस, दे आर इनटू एफएमसीजी. दे आर इनटू एफएमसीजी. एफएमसीजी में देखो क्या क्या है. आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, बिंगो, बी नेचुरल, इप्पी, ये बहुत सारे. मिंट, राइट. मिंट की ऐड देखी होगी, विवेल देखा होगा आपने, सेवलॉन देखा होगा, राइट. इसमें से बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे आपके डे टू डे लाइफ में. क्लासमेट, पेपर क्राफ्ट, ये सब नाम सुने होंगे. देन दूसरा, होटल्स में आईटीसी इनटू होटल्स. 5 स्टार होटल्स है उनके, रहेगा इनके नाम. आई कैन शो यू. दे आर इनटू होटल्स. यहाँ पे लिस्ट है क्या, कहाँ पे, मैं वो चेक कर रहा हूं. किधर किधर है. बॉम्बे में तो है, एयरपोर्ट के सामने ही आईटीसी का. जस्ट एयरपोर्ट के सामने, बॉम्बे एयरपोर्ट के सामने. ओके. देन दे आर इनटू होटल्स, 5 स्टार होटल्स. देन आगे पेपर, राइट. पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर बिजनेसेस. पेपर बिजनेसेस में वो, ठीक है. लाइक स्टेशनरी में जो पेपर यूज होता है प्रिंटिंग में वगैरह, राइट. दे प्रोवाइड दैट एंड वेरियस काइंड्स ऑफ पेपर. जनरली हम उसको इतना यूज नहीं करते, राइट. देन आगे पैकेजिंग्स, पैकेजिंग्स. दे आर इनटू पैकेजिंग बिजनेसेस. देन पैकेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे. देन एग्री बिजनेस. they are like they are new into this agri business and they are trying to make it a more profitable business. So proper agri business में काम करते हैं. Like आशीर्वाद आटा is one of the best example of their product. agri business का product है उनका आशीर्वाद आटा. So
जैसे पतंजलि काम कर रही है देखो, राइट, वैसे सिमिलर बेसिस पे ये भी काम कर रहा है. देन एग्री बिजनेस, एंड देन यू कैन सी आईटी, दे आर आल्सो इनटू आईटी. सो दे हैव वैरायटी ऑफ द बिजनेसेस. तो एखादा बिजनेस का 10-15 बिजनेस है तो ऑब्वियसली एखादा बिजनेस, राइट, आगे पीछे हो सकता है, उसकी वजह से शेयर्स डू गेट इंपैक्टेड. बट ये लंबे रेस का घोड़ा डेफिनेटली. देयरफॉर ये मुझे आपको दिखाना था कि वन ए फ्रॉड, राइट, जैसे मैंने आपको इसका क्वालिटी का दिखाया, फ्रॉड कितना इंपैक्ट करता है बिजनेसेस को, एंड व्हाई द अकाउंटिंग इज सो मच रिलेवेंट इन द डे टू डे अकाउंटिंग, अंडरस्टैंडिंग द बुक्स. जब आप किसी में इन्वेस्ट करते हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग कि वो जो दिखा रहे हैं वो करेक्ट है या रॉन्ग है. जो दिखा रहे हैं वो करेक्ट है या रॉन्ग है. यू शुड बी इन पोजीशन टू इंटरप्रेट द अकाउंट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन let me show you. देखो देखो, ITC is into फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस होते हैं और जल्दी सेल हो जाते हैं. दे आर कॉल्ड एज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. सिगारेट्स एंड सिगार, इट इज देयर मेन बेसिकली. ठीक है, देखो ITC इज वाइड. देखो यहाँ पे ITC cigarette business stands testimony to the company's unwavering and unrivaled, right, commitment to the quality, innovation, and the consumer focus. With more than 100 years of expertise in developing the products to match the evolving taste of the consumers, ITC cigarette business continues to be relentless in its pursuit, right, of strengthening its leadership position in every segment of the market in India. ITC's wide range of the brands includes Insignia, India Kings, Classic, Gold Flake, American Club, Navy Cut, right? All these actually I don't consume. मुझे इतना नहीं पता है, but अगर जिसको पता होगा ना, he can identify these names. And almost 80% of their revenue profit is from cigarette business. They are into cigarette business, food business, personal care business, education and stationery business, lifestyle retailing, safety matches, matchbox, agarbattis and dhoop. Wide range. They are into hotels. They are into packaging. They are into agri-business, information technology. So they are into so much businesses. वही तो मैं आपको समझा रहा हूं. एंड हमें ये भी समझना है कि when you are into different business, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए. This is what the accounts या कॉमर्स teach you. ठीक है. सो जस्ट आज एक न्यूज आई थी, वो मुझे दिखाना था, नथिंग एल्स. एक्चुअली my sincere request to you, download some apps, like example ET, Economic Times app, good app. मैं इकोनॉमिक टाइम्स की बात कर रहा हूं. द अदर ऐप इज द हिंदू, राइट, अदर ऐप इज द हिंदू. एक है, मैंने बोला इकोनॉमिक टाइम्स, दूसरा है द हिंदू. एवरीवन हैज अ मोबाइल, और उसमें एक ऐप डाउनलोड करने से इतना कोई बवाल नहीं मचेगा, बट नोटिफिकेशंस आते रहेंगे एंड यू विल स्टार्ट, एटलीस्ट आप हेडलाइन पढ़ना स्टार्ट करोगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज नॉलेज, राइट, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट. ऑलवेज रिमेंबर, भले आज उसका यूज नहीं होगा, बट इन द लॉन्ग रन यू आर डेवलपिंग ए हैबिट. सो एक है क्या बोला मैंने, एक है द हिंदू, एक है ईटी, राइट, इकोनॉमिक टाइम्स, एंड अनदर इज इन शॉर्ट. बोल के ऐप है, इन शॉर्ट्स. द हिंदू वालों का 60 वर्ड्स में न्यूज आती है, 60 वर्ड्स में न्यूज. What is good of the Hindu, because it reads out news for you as well. वो read करता है आपके लिए news.
यू हैव टू क्लिक। वो अपने लिए न्यूज रीड करता है, दैट इज अगेन ए गुड थिंग। अगर आपको कंटाला है पढ़ने में, इट विल रीड न्यूज फॉर यू। एंड न्यूज आर रियली क्वालिटी वन। डोंट इंस्टॉल टाइम्स ऑफ इंडिया, right? Don't install Republic, NDTV, right? ABP, they are useless. Install अगर चाहिए, और मैं बोल सकता हूँ इन्वेस्टिंग का एक ये आता है, इन्वेस्टिंग का ऐप आता है, investing.com, also install that. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसमें रिसर्च करो, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट वही आपके नोटिफिकेशन में आता है, हेडलाइन आती है, एटलीस्ट एक आधी हेडलाइन तो आप क्लिक करोगे पूरे दिन में। एक तो हेडलाइन इंटरेस्टिंग रहेगी आपके लिए कि जो इसको आप क्लिक करके पढ़ोगे क्या हो रहा है। एंड धीरे धीरे द नॉलेज जो एक्यूमुलेशन होगा दैट विल बी प्राइसलेस। आप मेजर भी नहीं कर सकते, उसका इतना इंपैक्ट होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर परचेस करो पढ़ो, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट इफ यू आर गुड मोबाइल्स, आप मोबाइल का डेटा है आपके पास, आप यू कैन यूज इट, you can definitely go and right read it. एक्चुअली आज मुझे सिखाना था, कोई इश्यू नहीं है, राइट? What we will do, try to understand. Tomorrow I will be taking additional lecture for everyone, right? आज का लेक्चर थोड़ा जनरल अवेयरनेस में गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, but these things are also important in your life. Understanding the things, they keep on changing on day-to-day basis. जिस इन्वायरमेंट से आप बिलोंग करते हो, कॉमर्स इन्वायरमेंट, लाइक उसमें क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टुमारो आई विल बी टेकिंग एडिशनल लेक्चर, मे बी आई विल बी टेकिंग फ्रॉम 9 to 10 एंड देयर आफ्टर मैम विल टेक फ्रॉम 10:15 टू राइट आगे. सो कल का मेरे टाइम बुक करके रखना, 9 to 10 आई विल बी टेकिंग अकाउंट्स. ठीक है, थैंक यू. आज मैं रुकता हूँ यहाँ पे, राइट? इट इज more of other discussion. Go and do some research. I can give you some examples. बीच में एस बैंक का फ्रॉड हुआ था, एस बैंक पता होगा आपको, गो एंड चेक एस बैंक वाला. रिलायंस पढ़ो, रिलायंस के बारे में, अनिल अंबानी का रिलायंस, राइट? उसके बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे आपको. देन गो एंड रीड व्हाट इज अ बैंक्रप्सी. गूगल पे डालो बैंक्रप्सी क्या होती है, गो एंड रीड, राइट? आपको थोड़ा समझेगा, थोड़ा तो समझेगा. ठीक है, सो चलो आज हम रुकते हैं यहाँ पे. आई विल कंटिन्यू विथ माई द लेक्चर टुमारो. 9 to 10 मेरे लिए टाइम रखना, 10:15 ऑनवर्ड्स मैम के लिए रखना. ठीक है, थैंक यू.